اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ آپ نے دیکھا سورہ البقرہ کی آیات نمبر 56، 57 اور 58 ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، اب یہ جو لن ہے یہ نفی برائے مستقبل ہوتا ہے۔ جہاں پہ مستقبل کے کسی کام کو کرنے سے انکار کیا جائے تو وہاں پہ یہ لام نون استعمال ہوتا ہے۔ لن نؤمنا، نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، لکا تمہارے لیے یا تمہاری بات۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا شاید، کہ یہ جو نؤمنا ہے اس کا مادہ ہے آمنا، یعنی الف میم نون آمنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا یا ماننا۔ ایمان لانا اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ بے آئے گا، لیکن جب بے نہیں آئے گا اور لام آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بات ماننا۔ لن نؤمنا لکا، نہیں ہم مانیں گے تمہاری بات یا تمہارے لیے۔ اردو میں نے بامحاورہ ترجمہ کر دیا تمہاری بات، لفظی ترجمہ ہوگا لن نؤمنا، ہم نہیں مانیں گے، لکا تمہارے لیے، یعنی جو تم نے بات کی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ جب بے کا صلہ آئے یا بے کی پریپوزیشن آئے تو اس وقت مطلب ہوگا ایمان لانا، ایمان رکھنا، یعنی رسولوں پر جو ایمان ہے، ارکان ایمان، اللہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخر پر۔ تو اس وقت بے کا لفظ استعمال، بے کا حرف استعمال ہوگا۔ لیکن اگر بے کا حرف استعمال نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہوگا بات ماننا، لن نؤمنا لکا۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کو بات سمجھ آ گئی اور یاد رکھیے گا اس کو۔ حتیٰ، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک ہے، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، تم، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تم نے بشرا پکڑ لیا ہے تو تم اب اپنے آپ کو سزا دو، اذیت دو، یعنی روزہ رکھو، بھوکے رہو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے تمہاری بات، حتیٰ یہاں تک کہ نرا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی فعل کے شروع میں نون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حال یا مستقبل ہے اور جمع کے لیے ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ جمع میں ہے۔ نرا، ہم دیکھیں، یہ اگر وہ ارانا یا ارانا ہو اور وہ نون الف بعد میں ہو، جیسا کہ ہم نے پچھلے، جیسے اس میں ہے زللنا، ہم نے سایہ کیا، یہاں پہ ہے نرا، تو یہ نون الف جو بعد میں آیا تھا اس نے بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے ہے، جو بات کر رہا ہے، جو متکلم ہے، جو فرسٹ پرسن ہے وہ جمع میں ہے لیکن یہ فعل ماضی کا ہے۔ یہاں پہ نون شروع میں ہے نرا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ نرا، ہم دیکھیں گے یا ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھیں اللہ کو۔ اب یہ کیسے پتہ چلا اللہ کو؟ اس لیے کہ اللہ کی جو آخری حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی اسم کے، کسی نام کے آخری حرف پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مفعول ہے، یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ خود کام نہیں کر رہا۔ تو حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو، یعنی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا،
اللہ तो खैर देखता ही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अल्लाह को देख रहे हैं। और अल्लाह को देखने का कैसे पता चला कि अल्लाह जो लफ्ज़ है, जो नाम है, उसकी आखिरी हर्फ ए के ऊपर ज़बर। तो हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम अल्लाह को देख लें खुला खुला, जहरतन खुला खुला। फ़ा अखज़त कुम, फ़ा, बस जब तुमने ये बात की तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? आपको बताया था फ़ा जो है वो नतीजे के लिए होता है, पिछले फ़ेल का नतीजा। फ़ेल क्या है? उन्होंने ये कहा, वज़कुल तुम। तो तुम्हारा ये जो कॉल था कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुला खुला। फ़ा, बस ऐसा हुआ कि तुम्हारे इस कॉल के नतीजे में अखज़त, उसने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? वो आगे मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि ते है आखिर में, ता है। अखज़त, अखज़ा मुज़क्कर के लिए, अखज़त मुअन्नस के लिए। बस उसने पकड़ लिया, उस मुअन्नस ने पकड़ लिया कुम, तुमको। अब ये पकड़ने वाली कौन सी चीज़ है? ये मुअन्नस कौन है? अस्साइका, तो वो बिजली है, वो कड़क है, जो आसमानी बिजली है, उसको साइका कहते हैं। तो चूंकि आप ये देखें इसके आखिर पे गोल ता है, तो इसलिए ये मुअन्नस है। आमतौर पे ऐसे ही होता है, लेकिन कोई एक्सेप्शंस भी होती हैं बहरहाल। तो असाइका मुअन्नस है, तो फ़अख़ज़त, बस उस साइका ने पकड़ लिया, बस उसने पकड़ लिया। अख़ज़त, ये भी अब आप याद रखिएगा कि अख़ज़ा फ़िल माज़ी है मुज़क्कर के लिए, अख़ज़त फ़िल माज़ी है मुअन्नस के लिए। तो मुअन्नस का कोई ऐसा काम जो माज़ी में हुआ हो, उसके लिए आखिर पे ता आ जाती है। अख़ज़त, आगे भी इसके बहुत सी मिसालें आएंगी, वो हम साथ साथ सीखते रहेंगे। फ़अख़ज़त, बस उस मुअन्नस ने पकड़ लिया कुम, तुमको, अस्साइका, तो कौन सा मुअन्नस, कौन सी मुअन्नस थी यहाँ पे? अस्साइका। और फिर यहाँ पे देखें कि अस्साइका की जो आखिरी हर्फ है ता, गोल ता, इसको ता मरबूता कहते हैं, उसके ऊपर पेश है। अब पेश का मतलब ये है कि ये फाइल है, इसने पकड़ा है, इसको नहीं पकड़ा। जैसे यहाँ पे था अल्लाह, नरल्लाह, अल्लाह को देखें। यहाँ पे है फ़अख़ज़त कुम साइका, तो साइका ने तुमको पकड़ लिया। साइका जो है वो फाइल है, साइका काम करने वाली है, साइका ने पकड़ा है। तो चूंकि पकड़ने वाला या पकड़ने वाली फाइल होता है या होती है, इसलिए यहाँ पे जो आखिरी हर्फ है ता मरबूता, उसके ऊपर पेश आ गई। फ़अख़ज़त कुम साइका, तो ते से पता लगा, ये वाली जो अख़ज़ा के आखिर पे है, कि ये जो काम करने वाला है या वो मुअन्नस है। और साइका तो पेश ने बताया कि ये फाइल है, इस ये काम कर रही है, ये पकड़ रही है। तो पकड़ना चूंकि काम है, इसलिए इसको फाइल कहते हैं। और ये साइका, तो ये बिजली है जिसने पकड़ लिया। वह अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। ये आपको पहले ही पता है वह अंतुम का क्या मतलब, और तुम सारे, तंजुरून तुम देख रहे थे। सुम्मा बासनाकुम, सुम्मा का मतलब आपको पता है फिर। बास ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कई दफ़ा कि जब ना आखिर पे आए तो ये फिर माजी होता है, और इसका जो फाइल है वो जमा है। बासना, फिर हमने उठाया कुम, तुमको। तो बासा का मतलब होता है उठाना, टू रेज। जैसे अंबिया का मतलब कहते हैं ना, मबूस हुए, उनकी बासत हुई, उर्दू में हम कहते हैं। तो बासा का मतलब होता है उठाना, खड़ा करना, कायम करना। तो सुम्मा बासना कुम, फिर उठाया हमने कुम, तुमको, मिम बादे, के बाद, यानी इसके बाद। किसके बाद? मौत कुम, तुम्हारी मौत के। तो उर्दू में तुम कह रहे थे ना कि बाद, उसके बाद। अरबी में मिम बाद आता है, मिम बादे, के बाद मौत कुम, तुम्हारी मौत पे। उर्दू में तो ये तरतीब जो है वो बदल जाएगी। तुम्हारी मौत के बाद, जब जुमला लिखेंगे पढ़ेंगे तो कहेंगे तुम्हारी मौत के बाद। यहाँ पे है के बाद तुम्हारी मौत के, मिम बादे मौत कुम, तुम्हारी मौत के बाद। तो मौते में जो मौत लफ्ज है उसमें ते के नीचे जेर है, इसलिए कि ये मिन आया है पहले। और बाद में भी जो दाल है उसकी भी दाल के नीचे जेर है, ये मिन की वजह से, क्योंकि मिन हरफ जर है। मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, फिर हमने उठाया तुमको,
کے बाद तुम्हारी मौत के लअल्लकुम ताकि तुम, जैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तशकुरून तुम शुक्र करने वाले बनो। वज़ल्ललना, तो ज़ल्ललना, ज़ल्ला उर्दू में भी हम ज़िल कहते हैं, इसका मतलब है साया। तो ज़ल्ललना साया किया हमने, अलैकुम, ये अला और कुम का जमा है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम कई दफा। अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अलगमामा बादल को। गमामा जो है ये निकला है गम से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गम्मा भी पढ़ते हैं, या गमामा, दोनों तरह से है। उर्दू में ये गम हम कहते हैं कि कोई मुसीबत हो, कोई बंदा दुख में आ जाए, तो चूंकि वो गम जो है वो किसी इंसान को लपेट लेता है, उसके ऊपर छा जाता है, इसलिए उसको गम कहते हैं। तो बादल भी चूंकि छा जाता है, जैसे आप देखें छोटा सा बादल होता है, तो वो जब सूरज के सामने आ जाए, तो इतना बड़ा सूरज है और छोटा सा बादल है, वो उसके सामने आ जाए तो सूरज छुप जाता है, चाहे एक ही बादल हो। इसलिए उसको कहते हैं ढांपने वाला, छुपाने वाला, अपनी लपेट में लेने वाला। इसलिए उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि अरबी ज़ुबान में चीज़ों के नाम जो हैं वो उनकी सिफ्त की वजह से होते हैं, उनके शक्ल सूरत से, रंग रूप से नहीं होता। तो बादल को इसलिए गमाम कहा गया है कि वो ढांप लेता है, किसी चीज़ को ढक लेता है अपने आप से, जैसे गम किसी इंसान को ढांप लेता है, उसको ढक लेता है। और अच्छा भला इंसान जो है वो सुस्त पड़ जाता है, उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता। जैसे वो शेर है ना कि ना छेड़ है निकते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे। तो वो जो बेजार बैठा होता है वो अच्छा भला सेहतमंद होता है, लेकिन उसका कुछ करने को दिल नहीं करता, वो बस सर नीचे डालकर और आराम से बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता, हालांकि बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं तकलीफ होती, बड़ा सेहतमंद होता है। तो छा जाने वाली चीज को गम कहते हैं, इसलिए अरबी ज़ुबान में बादल को, या कुरान करीम में बादल को गमाम कहा गया कि उसने तुम्हें ढांप लिया, यानी सूरज था बहुत तेज और उसके आगे आ गया और बादल से ढांप लिया तुमको, ताकि तुम्हें धूप ना लगे। तो वज़ल्ललना, ये साया कर दिया ना, गमाम के साथ साया कर दिया अल्लाह ताला ने फरमाया, और साया किया हमने ऊपर तुम्हारे बादल को, बादल का साया आ गया। वह अंजलना, और नाजिल किया हमने, ये बार बार आ रहा है और आपको तो अब ये पक्का पानी याद हो जाएगा। वह अंजलना, अंजला हमने नाजिल किया, हमने यानी नाजिल किया ना हमने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अलमन्ना मन को। अब यहाँ देखें मन्ना में जो नून है उसके ऊपर भी जबर है, क्योंकि उसको नाजिल किया है। वसलवा, और सलवा को, तो मन्ना की नून के ऊपर जबर है, इसलिए कि मन्ना मफूल है, मन्ना को नाजिल किया है। वसलवा, और सलवा को, तो जब नाजिल किया, तो बाब ये सवाल ना पूछेगा कि जी मन क्या है, सलवा क्या है, ये हमारे, जैसे मैंने अर्ज किया कि तफसीर की क्लास नहीं है, ये तर्जुमे की क्लास है। तो हमने नाजिल किया, यानी पहले तो साया कर दिया गमाम के जरिए, यानी बादल के जरिए, अलगमाम। तो ये एक मामूली बादल नहीं था, बल्कि एक ऐसा बादल था जिसने उनको अपने साय में ले लिया और उनको धूप से निजात दे दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मन्ना व सलवा को नाजिल किया, और ये फरमाया कुलू, कुलू जो है ये फेल अमर है, खाओ, तुम सब खाओ। क्योंकि अकला का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है खाना, अकला, अकला का मतलब है खाना। और इसको अगर हम कहें कि इसका फेल अमर क्या है, तो वह है कुल। कुल का मतलब होता है खाओ। तो अकला का मतलब हो गया खाना, और कुल का मतलब हो गया ये फेल अमर है, और उसका मतलब खाओ। ठीक है।
तो कुलू तुम सब खाओ। और ये मैंने बताया था कि जब किसी फेल के आखिर में वाव अलिफ आ जाए या वाव नून आ जाए जो उसमें, तो वो जमा कसी का होता है। तो कुलू तुम सब खाओ, मिन तय्यबात, उन पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो कुछ भी। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि माँ के 3 मानी है, यहाँ पे है माँ जो कुछ भी। मिन तय्यबात, तो तय्यबात में से जो भी खुदा ने दिया है, माँ रज़क़नाकुम, एक दफ़ा फिर रज़क ना आ गया, रज़क दिया। बाज़ लोग समझते हैं कि जो रिस्क है वो या तो सिर्फ मालो दौलत है या सिर्फ खाना है। और जैसे गारंटी कहते हैं कि जो मुर्दे हैं उनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आसमान में उनको रिस्क दिया जाता है। कहते हैं देखो जी वो वहाँ भी खाना खाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी। हालांकि रिस्क का मतलब खाना खाना नहीं होता, सिर्फ खाना भी एक किस्म का रिस्क है, लेकिन जहाँ खाना खाया जा सकता है वहीं खाना खाते हैं। ऊपर आसमान पे तो ये खाना नहीं होता क्योंकि वो मादी जहान नहीं है, रूहानी जहान। तो रज़कनाक या रिस्क का मतलब होगा जो भी दिया, चाहे वो आपकी सलाहियत है, आपकी लियाकत है, आपका हुस्न है, आपकी दौलत है, खाना है, जो भी है वो रिस्क में शामिल होता है, बीवी बच्चे भी, औलाद भी। तो रज़क ना दिया हमने कुम तुमको, तो ये बाद में से जो भी, माँ जो कुछ भी, रज़क ना कुम हमने दिया तुमको, व माँ। अब यहाँ देखें माँ का एक और मतलब आ गया, और यहाँ पे माँ का मतलब है नहीं। तो माँ ऊपर था जो कुछ भी, माँ रज़कना, जो कुछ भी तुमको दिया, व माँ और नहीं, ज़लम होना। तो ये माँ का जो मतलब होगा ना, वो जैसे मैंने पहले बताया था कि सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से होगा, कि किसी जगह उसका कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मतलब है जो कुछ भी, किसी जगह उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिहाज होगा नहीं, किसी जगह उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये उसका मतलब होगा क्या। तो ये 3 मानी है उसके। तो एक में एक ही आयत के अंदर 2 दफ़ा माँ आया और दोनों दफ़ा उसका मतलब मुख्तलिफ है। माँ रज़कनाकुम और जो कुछ भी हमने तुमको दिया, व मा ज़लमूना और नहीं हमने किया जुल्म, और नहीं जुल्म किया हमने, ज़लमूना और नहीं किया जुल्म हमने, वलाकिन लेकिन, कानू वो थे। तो ये काना से निकला है, काना की ये जमा है गायब के लिए। असल जो जो लफ्ज़ है जो बुनियादी है वो है काना। तो काना का एक मतलब है वो थे या वो हो गया। यहाँ पे है वलाकिन लेकिन, कानू वो सब थे, अनफुसाहुम यज़लिमून। अनफुसा अपनी जानों पर, तो अनफुसा जो है वो नफ्स की जमा है, अनफुसा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये किन चीज़ों का जमा है। अनफुसा और हुम। अनफुसा हुम यानी जानो अपने पर। तो चूंकि वो जानों पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अनफुसा पे जो आखिरी हर्फ है सीन, उसका उसके ऊपर जबर आ गई, अनफुसा। तो जैसे उसमें सूरह हामीम सजदा में जो एक आयत है, मैं अभी आपको बताता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें वो है जो तुम्हारे जो नफ्स हैं, तश्तही अनफुसुकुम नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। वो फरिश्ते कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलाकुम और तुम्हारे लिए है, फीहा इसमें यानी उस जन्नत में, आखिरत में, मा तश्तही अनफुसुकुम जिसकी ख्वाहिश करते थे तुम्हारे नफ्स। तो वहाँ पे है अनफुसुकुम, तो वहाँ पे सीन के ऊपर पेश या ज़बर नहीं है, सीन के ऊपर पेश है। इसका मतलब है कि अब ये नफ्स जो है ना वो ख्वाहिश कर रहे हैं,
नफ्स काम कर रहे हैं, नफ्स ख्वाहिश कर रहे हैं, नफ्स चाहते हैं, तो वहाँ पे है अनफुसुकुम, यहाँ पे है ये नफ्स अपने अनफुस पे जुल्म करते हैं, इसलिए सीन के ऊपर ज़बर है। वलाकिन लेकिन कानू वो थे अनफुसाहुम जानो अपनी पर यज़लिमून जुल्म करने वाले, वो जुल्म करते थे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि ये जो यज़लिमून है ये फ़ेल मुज़ारे है असल में, और फ़ेल मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों पे लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने तर्जुमा किया वो करते थे। इसकी वजह ये है कि अरबी ज़ुबान का मुहावरा ये है कि जब फ़ेल मुज़ारे से पहले जो कि हाल और मुस्तक़बिल के लिए होता है, अब इसका मतलब ये होना चाहिए यज़लिमून वो जुल्म करते हैं या वो जुल्म करेंगे। लेकिन जब इस फ़ेल मुज़ारे से पहले काना की कोई फ़ॉर्म आ जाए, कानू यज़लिमून, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा फ़ेल है जो माज़ी में होता था बार-बार। इसको कहते हैं फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी एक ऐसा फ़ेल है जो माज़ी में बार-बार होता था, अब नहीं होता, लेकिन माज़ी में बार-बार होता था। जैसे मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान में रहा करता था, तो मैं पाकिस्तान में रहा करता था, ये तो नहीं कि एक दिन रहा फिर उसके बाद आ गया, लंबा अरसा पाकिस्तान में गुज़ारा। ये है फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी, एक ऐसा फ़ेल जो माज़ी में बार-बार हुआ। तो अब ये जो ज़ुल्म करने वाली बात है बनी इसराइल की, वो बार-बार करते थे, इसलिए खुदा ने ये नहीं कहा कि उन्होंने ज़ुल्म किया। खुदा ने कहा वमा ज़लमूना, हमने तो ज़ुल्म नहीं किया। यानी खुदा तो बार-बार ज़ुल्म नहीं करता, एक दफ़ा भी नहीं करता। लेकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो थे अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले, यानी वो ज़ुल्म किया ही करते थे, बार-बार करते थे। ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिया उसके बाद खत्म हो गया, बार-बार करते थे। और यही आयत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के मुतल्लिक़ भी है, काना याकुलान ताम, वो खाना खाया करते थे, अब नहीं खाते। ये खैर एक दूसरा मौज़ू है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता लग जाए कि काना या काना, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, 2 के लिए, यहाँ पे कानू जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, इन तमाम बनी इसराइल के लिए। अनफुसाहुम जानो अपने पर यज़लिमून वो ज़ुल्म करते थे। तो ये 3 आयत हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।